everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss chapter number 2. The chapter name is Component of Food. In previous class, we understand about carbohydrate, protein and fat. And we also understand their test. Okay, how can we identify which food item have a carbohydrate, which food item have a protein, which food item have a fat. Okay, very easy test there. That's a short previous revision. Then we start a new topic. What do various nutrients do for our body? हमारी body के अंदर कितने टाइप के वेरियस डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या चीजें हैं, क्या होगा, वो तो हम पढ़ेंगे. लेकिन एक शॉर्ट प्रीवियस जो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट के बारे में रीड किया था, ऑल अबाउट we take a short revision. Okay, now I'm going to start a carbohydrate test. Okay, take a small piece of potato, then mash it and put in a test tube. Okay, then after हमने क्या ऐड किया था उसके लिए 2 and 3 drops iodine. Then after 2 and 3 minutes we observe potato turn a blue black with iodine. iodine के साथ में जैसे ही वो रिएक्ट करता है, पोटैटो का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा. मे बी अगर हम किसी फूड आइटम को लेते हैं, उसमें 2 और 3 ड्रॉप आयोडीन की ऐड करते हैं, मे बी वो फूड आइटम टर्न नहीं होता ब्लू ब्लैक में. दैट मीन्स क्या होगा, those food items don't show a blue black color. That means they don't have a carbohydrate, starch, sugar. हमने different different carbohydrate के sources read किए थे भाई. starch, sucrose, glucose, lactose, all are the example of carbohydrate. So or those food items show a blue black color. That means they have a carbohydrate. Means maybe they have a starch, maybe they have a sucrose, maybe they have glucose and lactose and so many things also. Okay. Okay, this is it's a very simple test about the carbohydrate. Then after we studied about the protein test. Okay, when we start a protein test, first we want to two chemical substance. First one is copper sulfate solution, and second one is caustic soda solution. Okay, first one is copper sulfate solution, and second one is caustic soda solution. And also we require a one test, 2 and 3 test tubes and droppers. Okay, so first we take a test tube and any food item जिसको भी हमको वो सैंपल लेंगे, we take a sample जिसका भी हमें प्रोटीन टेस्ट करना है. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको ग्रिंड या मैश करेंगे. फर्स्ट वी मैश द एनी फूड आइटम वट एवर यू टेक इट. ओके, फर्स्ट मे बी यू पनीर, चीज, एग वाइट या दाल. फर्स्ट यू क्रश इट. Okay, then 2 and 3 drops of water added and mash it properly. Okay, then after put this mashed food in a test tube. आपने क्या किया, इस mashed food को किस में डाल लिया, test tube में डाल लिया. Okay, after that 2 and 3 drop of, हमने 2 केमिकल लिए थे ना, फर्स्ट कौन सा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो 2 and 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे हम किसकी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की. we add 2 and 3 drops of copper sulfate solution. Then after we add 10 drop of copper caustic soda. Okay, तो हमने 2 और 3 ड्रॉप किसकी ऐड की, विद ड्रॉपर से हम उसको यूज ले लेंगे. 2 और 3 ड्रॉप्स हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की लेंगे. देन आफ्टर वी ऐड करेंगे हम उसमें 10 ड्रॉप ऑफ caustic soda to it. Okay, add 2-3 drop of copper sulfate solution. Then after we add 10 drop of caustic soda to it. Okay, shake well and allow the test to stand a few minutes. After few minutes we shall क्या ऑब्जर्व करेंगे, we observe after 5 to 10 minutes the food sample turn a violet color. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, जैसे ही हम फूड सोर्स में आयोडीन मिक्स करते हैं, they turn blue black. That means carbohydrate present. They don't show a blue black color. That means carbohydrate is absent. सेम यहीं पे होगा, जस्ट लाइक दैट, कि जो अगर हम 5 to 10 मिनट बाद में ऑब्जर्व करते हैं, मे बी वो फूड आइटम या जो हमारा सॉल्यूशन है, मैस्ड और कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो पूरा है, इट टर्न इन अ वॉयलेट कलर. दैट मीन्स दैट फूड आइटम, दोस फूड आइटम वी यूज दैट हैव अ प्रोटीन, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा. ओके, लेकिन अगर ये वॉयलेट कलर में चेंज नहीं होता है, क्लियर है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो भी फूड सैंपल हमने लिया है, we take any food sample, they don't have a protein. Okay, next one is fat. Very easy experiment, you do it in your home also. आप इसको अपने घर पे बहुत इजीली कर सकते हो. आपको किसी भी चीज पे चेक करना है कि मे बी
दाल के अंदर फैट प्रेजेंट होता है या नहीं होता, ऑयल में फैट प्रेजेंट है या नहीं, घी में फैट प्रेजेंट है या नहीं। आप इन सब ये सब चीजें आपके किचन में अवेलेबल है, so you do it this practical in your home. Okay. Okay, first in this practical you check any food item ki this food item have a fat or not. Okay, first you take it food sample of course, then after you take a white paper. Okay, first is suppose you take a peanut, maybe a cashew nut, maybe nuts ले लीजिए आप, है ना। तो उनमें से किसी को भी लोगे, उसको हल्का सा क्रश करके आप पेपर पे रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ओके, तो आप क्या करें, कोई भी पीनट लें या कोई भी फूड आइटम जिसको भी आपको चेक करना है। ओके, ऑन अ व्हाइट पेपर, ठीक है। देन रिमूव द पीनट फ्रॉम द पेपर एंड ऑब्जर्व। अब आप उसको थोड़ी देर पीनट को या जो भी आपने फूड सैंपल लिया है उसको थोड़ा दबाकर उसको सेपरेट कर लें। देन अ नंबर ऑफ ट्रांसल्यूसेंट एंड ग्रीसी स्पॉट अपीयर ऑन पेपर। आपको एक ट्रांसल्यूसेंट सा पेपर आपको दिखाई देगा। व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट? ट्रांसल्यूसेंट वो चीज होती है बेटा जिसके अंदर लाइट को अगर हम देखें तो वो फुल्ली पास पास थ्रू नहीं होती, पार्शली पास थ्रू हो जाए। ठीक है, तो पार्शली पास थ्रू ऐसी चीज को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, या ग्रीसी स्पॉट आपको वहां पर दिखाई देगा। यू आर, ठीक है। ऑब्जर्व दिस पेपर। तो अब इसमें क्या होगा आपके? उसके बाद में ग्रीसी स्पॉट होएगा। ऑब्जर्व दिस पेपर अगेंस्ट लाइट एंड दीज स्पॉट बिकम इवन मोर प्रोमिनेंट। दिस अपीयरेंस ऑफ दीज ग्रीसी ऑयल स्पॉट शो अ प्रेजेंस ऑफ फैट। ओके, तो इसका मतलब वो ग्रीसी स्पॉट होने के कारण क्या हुआ, ग्रीसी स्पॉट होने के कारण हमें पता पड़ता है कि ये जो भी हमने फूड सब्सटेंस यूज किया है उसमें फैट इज प्रेजेंट। ओके, so now we discuss a new topic. What do you various nutrients do for our body? हम जो ये वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड रफेज, है ना, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं, है ना, हमारी बॉडी को इनकी नीड क्यों होती है। ओके, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी प्रोवाइडेड फूड। ओके, प्रोवाइडेड फूड इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की नीड क्यों है, क्योंकि मेनली जो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वो कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट है। तो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड इन आवर बॉडी। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, है ना। इन प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो स्टडी अबाउट दैट कि फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट fat give much more energy as compared to the same amount of the carbohydrate. Food containing fat and carbohydrate are also called the energy giving food. देखिए इसमें बताया हुआ है कि अगर हम सेम अमाउंट फैट और कार्बोहाइड्रेट की लेंगे तो एनर्जी कौन सी होगी आप? वो एनर्जी होगी आपके फैट से आपको ज्यादा मिलेगी। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली एग्जिस्ट का में कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होगा, स्टार्च में, व्हीट, राइस, कॉमन शुगर। ठीक है, हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि दे आर द फर्स्ट फूड टू बर्न ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी। देखिए हमारी बॉडी के अंदर फैट भी है, मे बी हमने कार्बोहाइड्रेट भी लिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो एनर्जी देने का काम करेगा वो कौन करेगा बेटा, कौन करेगा, फर्स्ट टाइम जो हमें एनर्जी देने का काम कौन करेगा, फर्स्ट टाइम हमें एनर्जी देने का काम करेगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, next one is if there is excess intake of carbohydrate, it is stored in the body as fat. Okay, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेते हैं तो वे हमारी बॉडी के अंदर एज अ फैट स्टोर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फैट। देखिए फैट के अंदर जो हमने रीड किया कि बस एनर्जी गिविंग फूड है, कंपैरिजन करें अगर हम फैट का, क्या कि भाई कार्बोहाइड्रेट और फैट में से कौन एनर्जी हमें ज्यादा दे रहा है, तो कौन होगा बेटा, फैट होगा। क्लियर?
फैट गिव अस मच एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट कंपैरिजन में हमें फैट ज्यादा एनर्जी देता है। फैट हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर स्टोर रहता है, अंडर द स्किन, एक्ट एज ए इंसुलेटिंग लेयर, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलेटिंग लेयर के जैसे वर्क करता है। बाय रिटेनिंग द बॉडी हीट, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। इट आल्सो फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है। ओके क्लास, protein are the body building food. They are the basic component of cell membrane, hence they are essential for making new cells and replacing old worn out cells. This is the reason that are called body building food. तो जो प्रोटीन है वो हमारी न्यू सेल्स को मेकिंग करने में हेल्प करता है, हमारी जो ओल्ड सेल है जो वर्न आउट हो गई है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल अ प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। हियर इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन: ग्राम, मूंग, tur dal, beans, soybean, peas, meat, fish, paneer, and egg, etc. Okay, all are the example of a protein. Okay, next one is most important about the topic is vitamin. What is vitamin? Okay, vitamin are called the protecting food. Okay, so why we say vitamins are the protecting food? Because vitamin help us to fight against disease. क्योंकि जो हमारा विटामिन है वो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज से फाइट करने में क्या करता है, हेल्प। दैट्स व्हाई वी आर द विटामिन आर द प्रोटेक्टिंग फूड। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। Vitamin also help in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy. How they can do it? We know vitamins are the different types. ठीक है, फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, different type of vitamins are there. So one most important point about the vitamin have no energy value. विटामिन में कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है ना। हम फूड के बारे में क्या करते हैं, व्हाई वी ईट फूड, तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। लेकिन जो हमारे फूड सोर्स में जो भी विटामिन सोर्स है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, या डिफरेंट टाइप के विटामिन में से एनी विटामिन इज देयर, तो विटामिन डोंट गिव अस एनर्जी। विटामिन की कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती, विटामिन हमें कभी भी एनर्जी नहीं देगा। ओके, बट दे आर असेंशियल। लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के अंदर इनका जो पार्ट है वो क्या होता है, असेंशियल। व्हाई? बिकॉज दे प्रिपेयर अस टू अगेंस्ट डिजीज, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये हमें प्रिपेयर करते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर विटामिन इज अ प्रोटेक्टिंग फूड। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर, फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प इन अ गुड आइट साइट। देखिए विटामिन है ए है तो विटामिन ए हेल्प करता है हमारी गुड आइट साइट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अ हेल्दी गम्स, ग्रोथ ऑफ बोन्स, टीथ, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ गुड हेल्थ। इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विटामिन। ओके, तो सेकंड थिंग मैंने आपने डिस्कस कर ही लिया कि इसकी एनर्जी वैल्यू नहीं होगी, बट दे आर असेंशियल इन आवर बॉडी, है ना। ये असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मे बी हमने विटामिन ए कंप्लीट लिया, विटामिन बी लिया, सी लिया, लेकिन डी नहीं लिया। ठीक है, हमारी फूड के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बाकी सब विटामिन हम ले रहे हैं, तो विटामिन डी के रिगार्डिंग हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल विटामिन हमें बहुत कम क्वांटिटी में, दे नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, but they require a very small quantity but require a all type of vitamin we intake with our food। हम अपने फूड के साथ में इन सब विटामिन को लें, ये बहुत जरूरी है। ओके, भले स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन की नीड ऐसे नहीं होती जैसे हम 2 चपाती ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए, 2 एग, दाल, पल्सेस, ये सब प्रोटीन सोर्स में हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। विटामिन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। इंपॉर्टेंट विटामिन ऑफ द बॉडी आर विटामिन ए, बी, सी, डी, vitamin B1, B2 and other B group vitamin are present together in the same food and have related functions and are hence known as vitamin B complex। देखिए विटामिन ए है, बी, सी, डी जो भी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सब में 1 पार्ट है। ओके, विटामिन बी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे विटामिन साथ में एक ग्रुप के साथ में रहते हैं। जैसे विटामिन बी के भी सब पार्ट्स होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B12। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन अ स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन ए कीप आवर स्किन हेल्दी। विटामिन ए जो है वो कैसे हेल्प करती है, विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अगर बाई चांस हमारी फूड में से या हमारी डाइट के अंदर से विटामिन सोर्स क्या हो जाए, अगर कम हो जाए विटामिन ए का सोर्स, तो हमारी स्किन प्रॉपरली
शाइन नहीं करेगी, हमारी आईज जो है, हमारी आईसाइट धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जैसे विटामिन सी हेल्प टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज ऑफ विटामिन सी। जैसे अब कोरोना चल रहा है तो हम आप बार बार आपने घर में भी सुना होगा विटामिन सी सोर्स ज्यादा लीजिए, है ना। लेमन लीजिए, आंवला लीजिए, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी सोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है डिजीज से अगेंस्ट फाइट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन सी हेल्प करता है हमारे जो गम्स हैं, है ना, जहाँ पर हमारे टीथ पूरे फिक्स हुए हुए हैं, वो जो गम्स हैं उनके अंदर उनको, या हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी कौन हेल्प करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ ऑल्सो। तो ये जो हमारा विटामिन है वो किसमें हेल्प कर रहा है, विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को, बोन्स को, टीथ को, इनको रिकवर करने में, इनको इनके ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, ऐसे हमें इस टाइप के फूड इनटेक करने चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन को, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, विटामिन में अब ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, विटामिन ए मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये ऑल आर द एग्जांपल ऑफ विटामिन ए। विटामिन बी के सोर्स कौन से हैं, व्हीट, राइस, लीवर, ये सब हमारे विटामिन बी के सोर्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन सी, आंवला, टमाटो, ऑरेंजेस, गुआवा, ग्रीन चिली। ठीक है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ विटामिन सी। विटामिन डी मिल्क, बटर, लीवर, एग एंड फिश, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन के। तो कौन से विटामिन हमने रीड किए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन डी की ए की डेफिशिएंसी से हमारी स्किन और आईज हेल्दी नहीं रहेंगी। ओके, तो इसीलिए हमें विटामिन ए लेना चाहिए ताकि हमारी स्किन और आई क्या रहे, हेल्दी रहे। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को फाइट करने में, डिफरेंट टाइप की जितनी भी डिजीज है उन सब से फाइट करने में हमें हेल्प कर रहा है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ कहाँ पे होगा, बोन्स में, टीथ में रिक्वायरमेंट होती है, तो विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, तो डिफरेंट टाइप के हमने एग्जांपल पढ़ लिए कि जिसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, किसमें विटामिन ए प्रेजेंट है, किसमें विटामिन बी प्रेजेंट है, किसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग here is the mineral. मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट, जस्ट लाइक दैट। जैसे विटामिन की नीड भी हमें कैसी थी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट थी, सेम वैसे ही मिनरल्स भी हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो लाइक विटामिन, मिनरल्स आर आल्सो अ प्रोटेक्टिव फूड। जैसे हमने विटामिन को प्रोटेक्टिंग फूड बोला था, तो जस्ट लाइक दैट मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड अ protecting food as they are essential for various metabolic activity of the body. Okay, they are also needed for our growth of bones and heat, formation of blood, nerve, muscle function and food metabolism. Okay, तो हमारे फूड मेटाबॉलिज्म और इन सब चीजों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की। दे रिक्वायर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट बट मस्ट बी प्रेजेंट इन डेली डाइट। ये बहुत कम अमाउंट में, जस्ट लाइक अ विटामिन, रिक्वायर होते हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ में इनकी अमाउंट या इनकी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, भले ही स्मॉल क्वांटिटी। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट दे लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज। मे बी जैसे हमने पहले पढ़ा था भाई, विटामिन ए हमारी डाइट में नहीं होगा तो उससे रिगार्डिंग जो भी डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे हमारी आईसाइट वीक हो जाएंगी, सेम वैसे ही मिनरल्स में हर मिनरल्स की अपनी अपना एक फंक्शन होता है। अगर पर्टिकुलर किसी भी एक मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम इज आल्सो मिनरल, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी तो क्या होगा, हमारे टीथ, हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ओके, so if they are not present in right required amount, they lead to a deficiency disease. Same, they have no energy value. ठीक है, जैसे हमने विटामिन में भी सेम बात की थी कि they don't have a energy value. तो विटामिन एंड मिनरल्स both are don't have a energy value but are essential to the body. But essential होते हैं हमारी बॉडी में। Some important minerals needed by our body are calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium and potassium. Okay, milk, cheese, fruit, vegetable are the main source of minerals. And our body growth and proper body growth and to maintain a good health, some source different minerals are shown in figure 2.10. यहाँ पर 2.10 में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो है हमें किन फूड आइटम्स से मिलेंगे वो यहाँ पर।
तो यहाँ पर कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल भी दिए हुए, देखिए फर्स्ट वन इज आयोडीन, सेकेंड वन इज फॉस्फोरस, थर्ड वन इज आयरन एंड फोर्थ वन इज कैल्शियम। ओके, तो हमें आयोडीन किन से मिलेगा? फिश, जिंजर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कर्ड। और नेक्स्ट फॉस्फोरस, मिल्क, banana, wheat, rice, chilies. Next, some sources of iron: spinach, apple, guava, and liver. And some sources of calcium: milk and egg are the example of calcium. ठीक है, तो अगर हम इनको खाते हैं तो इनसे हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा। अब जो जो सोर्सेज बताए हुए उनसे हमें वी गेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. देखिए विटामिन डी का जो सोर्स है वो स्पेशली हमें सनलाइट से ही मिल जाता है। ओके, लेकिन आजकल हम अपने बॉडी को इतना कवर करके रखते हैं कि विटामिन डी की भी धीरे कब क्या होने लग गई है? डेफिशिएंसी होने लग गई है। ठीक है, तो हमें थोड़ी बहुत सनलाइट लेनी चाहिए, मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो सनलाइट है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो हमें उस सनलाइट को लेना चाहिए। ठीक है, अपनी बॉडी को उस टाइम पे कवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन डी जो है हमें डायरेक्टली कहाँ से मिल जाता है? सन से मिल जाता है। ओके, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। आप देखेंगे मिल्क जो है, देखिए कैल्शियम में भी है, फॉस्फोरस में भी है, हमने जो प्रोटीन रीड किया था प्रोटीन में भी एग्जाम्पल था मिल्क, कार्बोहाइड्रेट में भी एग्जाम्पल था, फैट में भी एग्जाम्पल मिल्क था, है ना। इसमें से काफी सारे मटेरियल जैसे लीवर है, एग है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन फूड आइटम हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, तो मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation। आपने इसको नोटिस भी किया होगा जब हमने 2.2 टेबल की थी, जब हमने टेस्ट किए थे ना फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, उसमें। तो वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। ऐसा होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर या किसी भी फूड आइटम के अंदर कोई एक न्यूट्रिएंट अदर न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे राइस हैज अ मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। और भी चीजें होती है, मे बी फास्फोरस प्रेजेंट, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, दूसरी चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अदर न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वी से द राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड में लेते हैं। ओके, तो एक सेम फूड आइटम में, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि सेम फूड आइटम में हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। अगर हम मे बी पीनट्स को, सॉरी ग्राउंडनट को खाते हैं तो मे बी हमें उससे फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और कुछ मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है, बट उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की अमाउंट कंपैरिजन टू अदर्स ज्यादा है, हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ग्राउंडनट में ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उसको फैट के एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, तो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर। इन सब के साथ में देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। इनके साथ में टू कंपोनेंट्स और ऐसे हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज डाइटरी फाइबर, ओके, एंड सेकेंड वन इज वाटर। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का एक अदर नेम क्या है? रफेज। रफेज आल्सो नोन एज अ, रफेज को भी हम एक नाम से जानते हैं, डाइटरी फाइबर। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर एंड रफेज आर द सेम थिंग। Okay. Our body need dietary fiber and water. Dietary fibers are also known as roughage. Okay. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Roughage हम mainly provide किए जाते हैं plant products से. Okay. Whole grains, pulses, potato, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and add to the bulk. This help our body get rid to undigested food. देखिए जो रफेज है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं हमारे फूड में, जैसे होल ग्रेन, पल्सेस, प्रोटीन, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स आर ऑल द सोर्सेज ऑफ मेन रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। रफेज किसी टाइप का न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, ये क्या इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ फूड एड टू इट बल्क, दिस मस्ट गेट रिड। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से गेट रिड करने में हेल्प करता है।
जैसे हमारे कल भी बात हुई थी, जो यूटेंसिल्स हैं, अगर उन पे बहुत ही वेस्ट मटेरियल अगर चिपक गया है, उसको साफ करने में कौन हमारा स्क्रब काम करता है ना, जिससे हम बर्तन या वो यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं। तो जस्ट उसी स्क्रब के जैसी ही जो फंक्शन है वो किसका होता है, रफेज या डाइटरी फाइबर का होगा। तो जैसे ही वो स्क्रबर की स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, देखो फाइब्रस टाइप के होते हैं, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर किसकी होगी, रफेज की। रफेज में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हमारी बॉडी से गेट रिड आउट करने का वर्क जो होगा वो किसका होगा, रफेज का होगा। तो रफेज हमारी बॉडी में जस्ट क्लीनिंग एजेंट की जैसे काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो भी खराब चीजें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम